Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will discuss over history exam. Yes, today the thing which we will do is history exam preparation tips and how you can prepare for history exam. History इतिहास आप सभी जानते हैं एक ह्यूमैनिटीज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एंड यू विल give exams in May for the history exam for class 12th. So what you have to do, what are the tips, how I scored 98 out of 100 and how I did preparation and how I write answers, tips and I will provide you the previous year question paper mock test solutions and all the things for your learning for your history exam. You will get more much and good materials from this video and links are in the description. Let's move to screen and see what and how you will achieve good marks or you can write examples and with good writing skills you can write history exam and achieve better marks. So let's come to screen. Well, Hello. So yes, today's topic is history exam preparation tips and strategies to score better in history exam for class 12 CBSE boards. How to score 100 out of 100 and how I scored 98 out of 100. You can also score. Do you think history is boring subject? So yes, history is not boring subject. Read it like story and take interest in it. It will become a story and you will fall in love with history exam. So yes, exam preparation you need to know that history is interesting subject. First of all, read like a story and take interest. You need to have interest in it. Means you will fascinated by the terms which we study because it is Indian history and you will relate a lot. And second thing you should do, visit National Museum because National Museum is the place where all historical things are there. You can see by your eyes and you will relate a lot. So you will relate with present the history things. Know your country history. In this 12th class syllabus, you will get to know about our Indian history. So you will get to know about how we come from our history to now. So know your country's history. डेट्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते. यू शुड रीड बुक थॉरली एंड एज ए स्टोरी. देखिए, जब हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बुक को जो तीनों एनसीईआरटी की बुक हैं उनको ठीक से रीड करना है सारा. मैंने जब प्रिपरेशन की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैसे 98 आ गए थे मेरे 100 में से 2 मार्क्स ही कटे थे. तो मैंने रीड सारा किया था पेंसिल लेके तीनों बुक को स्टोरी की तरह इंटरेस्ट से बिल्कुल, क्योंकि हमारी हिस्ट्री थी तो उसको रीड किया था. रीड करने पर सारी स्टोरी की तरह समझ आ गई थी जिससे मैं लिख पाया था. तो आप भी जितना रीड करेंगे उसको पढ़ेंगे समझेंगे इजी होगा, स्टोरी की तरह होगा. रीड करना है और रिलेट करना है कि हाँ ये तो ये चीज़ थी, अच्छा गांधी जी, अच्छा जो जो चीज़ होंगे रिलेट करेंगे. अच्छा हम्पी हम्पी तो हमारे साउथ में है. फिर means to say you will get to know history and story, like you take interest in story. अच्छा ये हुआ इसके बाद ये हुआ. सो वैसे रीड एंड रिलेट करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं. बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. देन रिपीट एंड डू प्रैक्टिस द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एज मच एज यू कैन डू. यस, सो व्हाट इज द रीडिंग एंड बुक्स. अगर हमें रीडिंग करनी है अच्छे से हिस्ट्री एग्जाम में तो कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसे रीड करना है. सो ये फर्स्ट बुक है आपकी, पार्ट 1 है क्लास 12th की. सो मैं हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम में समझाता हूँ आपको. चैप्टर 1, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ. हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में. सो कैसे हड़प्पा सभ्यता आई, मोहनजोदाड़ो, सारी चीज़ उनके सिविलाइजेशन कैसी थी, नगर स्थिति, नगर सभ्यता, सारा आप बाजार बाजार सब पढ़ेंगे. इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा बिल्कुल. कैसे पाए गए, कहाँ कहाँ थे, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था. सारी चीज़ें आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरेस्ट से. देन राजा, किसान और शहर.
आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रिश्तेदारी, जाति और वर्ग, इसमें कास्ट एटसेट्रा, हाउ मैरिजेस हैपेंस इन दैट टाइम, कैसे कैसे शादी होते थे, अंत विवाह, भाव विवाह, सारी चीज़ें रिश्तेदारी, जाति और वर्ग में पढ़ेंगे आप। अध्याय 4, जिसमें आप विचारक, विश्वास और इमारतें, विचारक जो जो आए, विश्वास क्या थे, इमारतें कौन कौन सी थी, वो सारा तो बिल्कुल रीड करेंगे, सारा समझ आ जाएगा आपको। पार्ट 1 है ये हिस्ट्री की बुक का। सो रीडिंग्स ये सब करनी है आपको। नेक्स्ट बुक है हमारी इंडियन हिस्ट्री की पार्ट 2, जिसमें सारा मुगल्स के बारे में है। और देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। यात्रियों के नज़रिए, कि कौन कौन विजिट करने आया इंडिया, उन्होंने क्या क्या बोला। इसमें इब्न बतूता एटसेट्रा के व्यूज़ है हमारे इंडिया के ऊपर, कि कैसे यहाँ पे रहते थे लोग, कैसे यहाँ की सभ्यता थी। तो जो बाहर से आए यात्रियों के नज़रिए, समाज, हमारे सोसाइटी के बारे में समझ, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी की बात हो रखी है। नेक्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग, रिलेटिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, भक्ति सूफी परंपराएं। थोड़ा धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ इसमें आप पढ़ेंगे। भक्ति सूफी एंड हाउ द movement started and Sufism, Bhakti movement, etc., which is interesting. Mirabai and all Muhyiddin Chistis you will study, you will get so much interest. So एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर तेनालीरामा देखते हैं आप, बहुत अच्छा और रिलेटेड टॉपिक है। इसमें साउथ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पूरे इंडियन साउथ के बारे में, कहाँ क्या चीज़ थी, उनके कैसे कल्चर था, कैसे वहाँ के राजा थे। विजयनगर के बारे में लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का इसमें सारा दे रखा है। चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज से मुगल साम्राज्य के बारे में पूरा आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये चैप्टर भी पढ़ेंगे। लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के टाइमिंग की बात की गई है इसमें। आप कैसे कैसे किसान रहते थे, जमींदार कैसे थे, कृषि की क्या क्या चीज़ें थी, मुगल साम्राज्य ने कैसे वहाँ पे क्या क्या करते थे, वो सारी चीज़, राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन है। शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं, सारे उन सब के हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा अकबर ने जो जो किया, जजिया कर हटाया, अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ेंगे इस बुक में। देन थर्ड बुक देखते हैं, जिसमें उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन है। इजी है, हमारे इंडियन, ये लेट इंडियन हिस्ट्री है थोड़ा इसमें। विद्रोही और राज, सो आप जानते हैं कि 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान है इस बुक में। सो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री बुक है, जिसमें हमारी ही इंडियन हिस्ट्री कैसे कैसे ग्रो हुआ, कैसे कैसे आए हम, क्या क्या हुआ, औपनिवेशिक शहर नगर योजना, नगर कैसे बसाए गए इंडिया में, कैसे भारत में नगर बसे हैं, कैसे उनका कौन कौन सी शैलियों से, नवगोथिक शैलियाँ, वो सब पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो लास्ट के 3 हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उनको ढंग से प्रिपेयर करें। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, ये हम अपने बचपन की हिस्ट्री से पढ़ते हैं और हमारे फ्यूचर तक में काम आता है। ये महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और बाकी जितने थे। विभाजन को समझना है, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कैसे कैसे हुआ था, जो पोल साइंस में भी इसका मिल जाएगा आपको, पोल साइंस में भी पढ़ते हैं। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, ये भी इजी और पॉलिटिकल रिलेटेड है, कैसे संविधान बना, उसकी इतिहास है ये इसमें। तो ये बुक भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, आपका प्रिपेयर हो जाता है बिल्कुल ठीक से। तो टिप्स क्या रहेंगे, आपको लास्ट चैप्टर्स पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर जितना करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना है, कैसे आया है पैटर्न देखना है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं हिस्ट्री के एग्जाम में, पैटर्न देखोगे तो बेस्ट जाएगा आपका। क्वेश्चन विल बी मोर फ्रॉम द रिसेंटली, जो रिसेंटली चैप्टर्स लास्ट के हैं, जैसे महात्मा गांधी का आंदोलन है, जितने पीछे के चैप्टर्स हैं सारे वो चीज़ें देखेंगे। Okay, so you should focus on last chapters recently which you did, that from that chapters the question will be there most. So yes, इंटरेस्टिंग जितना आप बना लेते हैं ना और अपने पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हिस्ट्री एग्जाम इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो यस, लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। यस, सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न कितना होगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्वेश्चन पेपर, ए बी सी डी ई।
फर्स्ट पार्ट ए देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें जो पहले का पैटर्न था थोड़ा वो मैं समझा रहा हूँ कैसे आता था। 2 से 3, 2 into 3, सो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के लिए। देन 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते थे 24 मार्क्स के लिए, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, और जो पार्ट ए था उसमें वेरी शॉर्ट थे, 2 मार्क्स के आते थे। हमारे टाइम का बता रहा हूँ क्योंकि हमारे टाइम पे जैसा पैटर्न था अच्छा था, इंटरेस्टिंग था और काफ़ी बेस्ट पेपर गया था। सो पार्ट सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें 8 नंबर के मार्क्स आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ऑप्शन के साथ होते हैं, 24 मार्क्स के लिए होते थे, जिसमें आपको काफ़ी लिखना पड़ता था और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों से जो पढ़ा है हमने उसको बहुत डीपली डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो पार्ट सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता था पार्ट डी में, जिसमें 7 मार्क्स के होते थे, 3 क्वेश्चन करने होते थे 21 मार्क्स के लिए। तो ऐसे पैटर्न होता था 2+2 का 2 क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 7 नंबर का ये पैटर्न होता था। पार्ट ई में मैप क्वेश्चन करना पड़ता था फॉर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के लिए मैप क्वेश्चन आता था पार्ट ई लास्ट, सबसे लास्ट में। सो हिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग एग्जाम है ह्यूमैनिटीज का। सो आपको क्वेश्चन पेपर को समझना है, क्वेश्चन पेपर को अभी से प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप आइडिया मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है तो करेंगे। ये तो पिछले साल का पैटर्न था, हमारे टाइम पे ऐसा आया था जो कि बहुत अच्छा पैटर्न था और इजी था और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आप देख सकते हैं ऐसा हमारा पेपर था, भारतीय इतिहास की निर्वाचित करने में सिक्के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे बताना होता था 2 मार्क्स के लिए। ये पार्ट ए देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। So I told you, visit National Museum in Delhi because it will make you to understand the things in reality. अगर आप नेशनल म्यूजियम जाते हैं तो आप जो अपने बुक में चित्र देख रहे हैं वो आप फ्रंट लाइव देखेंगे और आप रिलेट करेंगे कि हाँ, तो ये तो मैंने पढ़ा है, और ये चीज़ आपके दिमाग में हो जाएंगी, जो कि आप आंसर लिखने जाएंगे तो ये हेल्प करेंगी। मैं भी गया था, हमारे टीचर ने सजेस्ट किया था। सो वाई टू विजिट नेशनल म्यूजियम? इट हेल्प्स इन रिलेटिंग और आर स्टडी इन प्रेजेंट। अभी के समय में हम रिलेट कर पाते हैं, और जाइए, आप जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। हमारे टीचर ने सजेस्ट किया था वहाँ घूमना, क्योंकि वो हमें एक हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है कि हम जब आंसर लिखते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने होती है, हम देखे होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में ईजी पड़ जाता है। सो एवरी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट गो देयर मस्ट विजिट द म्यूजियम एंड many students have gone there, our fellow friends and many more goes, because it is the thing which you will get to know in practical knowledge of history will be there in museum. So you will see it's free if you go with school ID card, or it's cheap in the fair. So you will see the things which you see in the book. जो आप बुक में देखते हैं डिट्टो वहाँ देखते हैं, फैसिनेटिंग लगता है, अच्छा लगता है, हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है, बुक में पढ़ा है इसके बारे में, वो दिख जाती है वहाँ पर। तो you will relate a lot and it will impact on your mind, so you can write a good and better answer. ऐसा दिखता है नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम के कुछ आप इमेजेस देख लीजिए, इंटरेस्ट हो जाएगा, वही चीज देखेंगे जो आप बुक में देखते हैं ओरिजिनल में। सो ये है नेशनल म्यूजियम, ये ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में ही है, राजपथ के पास, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से आप जा सकते हैं। ये सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती है बुक में, वो वहाँ रखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। नेशनल म्यूजियम आपको ज़रूर जाना चाहिए, हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए सबसे बेनिफिशियरी प्लेस है, एंड यू मस्ट विजिट द नेशनल म्यूजियम। अब कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर इस बार, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर? I would say start in sequence or otherwise with 8 marks questions. So what you need to do, start with sequence first part A. So you will attempt a good, because I know that how you should do, or it will impact that you can score better marks, and I suggest that you should start in sequence, which teacher also like that because it is easy for them to check. Or you can start with 8 marks question, because high marks question if we do in starting, so our
मोस्ट टेंशन स्कोर। सो हाउ मच टू राइट, कितना लिखना चाहिए। देखिए आपको थॉरली और ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हुए पॉइंट्स को लिखना है। जैसे कि वुड यू अग्री, एक क्वेश्चन एग्जांपल, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। वुड यू अग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग। क्या जो नल निकासी जो व्यवस्था थी वो टाउन प्लानिंग, शहर विकास का एक वो थी, रीजन थी, और तुम इस पे अग्री करते हो, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर देना है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे मतलब टाउन प्लानिंग दिखा रहा है, मतलब पहले लोग कैसे टाउन प्लान कर रहे थे रहने के लिए टाउन। सो सबसे पहले हमने लिख दिया ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे एक पॉइंट बना दिया ड्रेनेज सिस्टम होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, अंडरलाइन करके उसको डिस्क्राइब कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। So you need to write in a elaborative points, like write in a point then elaborate it. Because it history exam you have to write not that much, but you have to write elaborate it and make it easier for understand for the checker. So yes, tip is that if you forget the dates, don't worry, you can write here or leave space for the date. Because what happens when we write the answer of history exam, देन वी फॉरगेट डेट्स। हम दोस्तों से पूछते हैं, हम हमें भूल जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्पेस छोड़ के आगे लिखें, क्योंकि डेट के चक्कर में आगे नहीं लिख पाते क्या डेट था, फिर वो क्वेश्चन ही रह जाता। तो डेट के लिए स्पेस छोड़ दें, या छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ ईयर लिख देते हैं, देन यू कैन राइट इट लेटर। सो ये एक टिप आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो पार्ट डी कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो कि होता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। वही 7 × 3 3 क्वेश्चन करना होगा, 7 मार्क्स का, 20 मार्क्स का टोटल ये पार्ट डी होता है। तो सेकंड 2 नंबर के 2 आएंगे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इजी होता है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए सोर्स बेस, जो सोर्स होगा उसका थोड़ा पता होना चाहिए पहले से बुक में, बट उसमें होगा आंसर, देयर विल बी आंसर इन शॉर्ट टाइप पैसेज एंड इट इज फ्रॉम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सो पार्ट डी को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे आप। देख ये देख रहे हैं आप, पार्ट डी कैसा क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड है 2019 का क्वेश्चन पेपर में से। इतने लाइंस दे दिए, नीचे क्वेश्चन बना दिए, उनके क्वेश्चन है, उनमें हो सकता है आंसर होगा उस पैसेज में, नहीं तो आप अपना यूज करेंगे माइंड कि क्या क्या थे। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप। पार्ट ई जो मैप क्वेश्चन होता है, तो मैप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमारे टाइम पे भी जो आया था, उसमें आपको क्या करना है, डोंट डू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट। क्या होता है, हम बार बार एग्जाम में पूछते हैं ये भी करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी लगता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मैप के बाद वाला 16 और 17, सो वो करने की हम ट्राई करते हैं, हम सोचते हैं ये भी करना है, जो कि आपको नहीं करना है, वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होता है, वहाँ मेंशन होता है, पढ़ लीजिए करिएगा क्वेश्चन पेपर को। So you should attempt only map question. There will be first question which is will be related to place, जहाँ वो चीज़ हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक मैप का होगा, जिसमें जो चीज़ वहाँ हुई वो बता देंगे, यहाँ पे चोरा चोरी, तो वो मैप में कहाँ हुई वो आपको भरना है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ओनली फॉर 2 + 3 मार्क्स। एक 2 मार्क्स के लिए होगा, 2 जगह भरनी होगी, और 3 मार्क्स के लिए होगा जिसमें ABC दिया होगा, उसमें भी आपको लिखना है कि वो जगह कौन सी है। So second question, you need to identify the place ABC and map will be like this. So you need to write upon it and अच्छे से लिखेंगे तो बेस्ट जाएगा आपका एग्जाम। देन पार्ट ई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैप का क्वेश्चन होता है। आप 2019 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि आगरा मुगलों के अधीन एक क्षेत्र, उसको दिखाना है, या विजयनगर को आपको दिखाना है। तो मैप का क्वेश्चन पार्ट ई जो आता है हिस्ट्री एग्जाम में, वो ऐसे आप कर सकते हैं। इट वॉज बेस्ट। नाउ लेट्स सी लेटेस्ट CBSE हिस्ट्री क्लास 12th एग्जाम पैटर्न, कि आपको इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग देना है, जिसमें 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर देना है। सो लेटेस्ट वाला देखेंगे अब, वो मैंने अपने टाइम के स्ट्रेटेजी और अपने टाइम का सारा चीज़ आपको बताया हिस्ट्री एग्जाम में। एंड एज आई स्कोर यू कैन ऑल्सो स्कोर, बिकॉज इट्स ईजी एंड यू कैन स्टडी वेल टू अचीव इट। सो अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट हम सारा पैटर्न और सारी चीज़ें देखेंगे। MCQs आएंगे, क्योंकि CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया कोविड-19 की वजह से, स्टूडेंट्स के लिए ईजी और
काफ़ी अच्छा कर दिया। सो पार्ट ए देखेंगे कैसे आएंगे। 116 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज डेफिनेशंस लिखने को आएंगे, डायग्राम देख के आपको क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। आई हैव प्रोवाइडेड क्वेश्चन पेपर इन लिंक in description, so see the question patterns and how it will come. So part B में 17 to 19 क्वेश्चन होंगे, read the short passages and MCQ आंसर को देना है आपको। 3 पैसेजेस आएंगे। पार्ट बी हिस्ट्री एग्जाम का ऐसा होगा। देन लेट्स सी पार्ट सी, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर से रिलेटेड होंगे। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होंगे ये चारों क्वेश्चन। सो पार्ट डी देखेंगे। पार्ट डी में लॉन्ग आंसर, वही 8 मार्क्स वाले जिसमें आपको फोकस करना है, अच्छे से देना है, इलेबोरेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। पार्ट डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन आपको करने विथ ऑप्शन होंगे, आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे और सारा इजी और आप अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज ये ज़्यादा उतना टफ होता नहीं है, आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है और इसमें 8 मार्क्स के लिए होता है। तो आपको काफ़ी लिखना है बट इलेबोरेटिव अच्छे पॉइंट्स को लेके लिखना है, ये नहीं कि लिखना है तो 10 पेज लिख रहे हैं। आपको करीब करीब 4 से 6 पेज इसमें अच्छे से पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है क्योंकि 8 मार्क्स के लिए है। पार्ट ई आपको पता है मैप का क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, बट 2+2+1 के लिए होगा। यू शुड हैव नॉलेज बट यू मे फाइंड आंसर इन दो शॉर्ट पैसेजेस, वही पैसेजेस सोर्स बेस वाला है पार्ट ई इसमें। एंड मैप भी है। सो लेट्स सी follow latest pattern, how you will follow the latest pattern and how you can achieve good marks. Solve mock test and sample paper for your betterment of practice in history exam. What you need to do: solve mock test and sample paper. All question papers are available in description link, so you will go and download the paper and do that so that your exam preparation will be boost. So don't need to do that much hard work because 30% syllabus reduced, MCQs are coming, easy questions are coming. So it will be easy. You can score better or you will score better marks. You know, this was the strategies. Study the last chapters very carefully because the question, most of the questions will be from last chapters as you have done it recently and it will be in your mind. So प्रॉपरली पढ़े लास्ट चैप्टर जो जो थे तुम्हारे आंदोलन से हो, गांधी जी के संविधान से हो, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट्स सी नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड and I guarantee you this was the best strategy exam for all history exam for class 12th. So all the best for your exam and you will give a best exam. Share with class 12th CBSE boards जो भी आप देख रहे हैं because it is so much beneficiary for them. I have described it all strategies, tips and how they will perform a good history exam and they will score better marks as I scored. So if you miss this video, so it will be big mistake because you have came across this video and you got everything to give history exam, so you will regret. Watch this video on YouTube, so definitely you can also score as much as I scored. You can also, this was the best strategy because I described you from basic to everything what you need to do and what you can do or avoid mistakes. So due to your senior I describe everything. So I have done a lot of hard work on this video. I did so much PPT presentation and video shoot. So please share and subscribe channel. Please subscribe this channel and share with class 12th students. Thank you so much for watching this video till end. We'll meet you soon. Ta-da, bye bye. Thank you so much for watching this video. I hope you understood all the concepts and how you can give better history exam for class 12 and you will achieve good marks as I achieved, and you will practice these things which I told you in this video and you write answers like that with that preparation, with that kind of things which I described you, with the good answer writing and giving a better solution or working upon your answers and how you will solve the questions of history exam and how you can make interest and how your interest will be built in this history exam. So thank you so much for watching this video.
share with your class 12 friends and with your others people in developing history subject interest and how you will give class 12th history exam. And I have provided you all material link in the description. Like, share and comment on this video. I hope you enjoyed and learned a lot from this video. This video is gonna help you to achieve or score better for class 12th history exam. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe with your friends.